Okay, so today we'll start conjugacy class and the class equation of a group. Okay, so today is our topic is class equation of a finite group. So what is class equation? Why we need to find the class equation of a group? The motivation for the class equation in group theory is to provide a powerful tool for analyzing the structure of the group by relating the order of a group to sizes the conjugacy classes. It's actually helps in understanding properties like simplicity, solvability, and nilpotency of a group. Okay. uh, Specifically, actually, it decomposes a group into conjugacy classes, revealing information about the group's internal structure. Okay, so start करते हैं conjugacy class and the class equation of a group. तो यहाँ पे क्लास मतलब क्या है ग्रुप का? एक ग्रुप का क्लास मतलब it is we will break the group into disjoint classes. So uh, in algebra, what is the operation which breaks the set into disjoint sets? That is the equivalence relation, right? So इस केस में हम एक ग्रुप के ऊपर में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे जो कि ग्रुप को एक डिसजॉइंट सेट्स में तोड़ देगा। फिर वो एक एक सेट को हम एक एक क्लास बोलेंगे। ओके, सो फाइन। सो पहले हम लोग एक फाइनाइट ग्रुप के ऊपर वो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं। ओके, सो लेट G be a finite group. Define a equivalence relation on G by two element G1 and G2 in G are related two element G1 and G2 are related by a relation. This is the relation. Okay, this is the symbol of the relation. If and only if B is equal to AG inverse for some G belongs to G. Sorry, ये पे ये ले लेते हैं, so that's makes sense actually. Two element में यहाँ पे ये लिया था, two element A and B. So we say two element A and B are related by the relation this if and only B can be written as a G A G inverse for some G belongs to the group. Okay, अगर दो एलिमेंट को हम रिलेटेड बोलेंगे अगर एक एलिमेंट को G A G इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सम G belongs to the group. Okay, so that is नोटेशनली क्या बोल रहे हैं? नोटेशनली ये है कि A is related to B if and only if B is G A G inverse for some G belongs to G. So okay,
So अगर B is related to A, तो A is also related to B. Why? Because if B is equal to G A G inverse, this will implies that A will equal to G inverse BG, right? So अगर G inverse को तुम G dash मान लो, let's G dash equal to G inverse, so तुम ऐसे लिख सकते हो B, A को इस फॉर्म में लिख सकते हो, सॉरी, यस, A को इस फॉर्म में लिख सकते हो. It can be written as G inverse BG. Okay, this is A. Fine. So if A is related to B, implies B is related to A. Also A is related to A. Why? This is means this is, so this is actually means the symmetric, right? The relation is symmetric, and A is also related to A. Why? Because you can write as a E A inverse, right? So this is means reflexive. And if A is, you can prove similar transitivity is A is related to B, then you can write B as a, so if A is related to B, it means that B you can write as a G inverse, and let's also take B is related to C. This means you can write C as some G1 G1 B. Okay, G1 inverse. So in that case, you want to you want to prove that A is related to C. So that's mean you want to write C as a some x A x inverse for some x belongs to. So what we have, C is actually, C is G1 B G1 inverse. So in place of B, write GA G inverse, because B is GA G inverse, right? So G1 GA G inverse, then G1 inverse. So this is nothing but GA G inverse into G1 G whole inverse, right? So this also belongs to G. This element belongs to G. This belongs to G. This also belongs to G. So this means A is related to C. So what we prove that this relation is a equivalence relation on G. सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करते हैं, ये इस सेट G को डिसजॉइंट यूनियन ऑफ क्लासेस में ब्रेक कर देगा. ओके, सो बिफोर डूइंग दैट, सो let us find what is class of element by this relation. So let's find what is class of A. So class of A में कौन कौन एलिमेंट रहेगा, all those B रहेगा such that A is related, B is related to A, right? All those B रहेगा such that A B से related हो. ओके, तो इसका मतलब क्या है, all those B such that you can write B as a G inverse for G belongs to G. So this set is nothing but actually G inverse, right? For G belongs to G. So this is actually the class of a element. Okay. So ultimately हम लोग क्या पढ़ रहा है, since it is equivalence relation, it will break G into equivalence classes. So you can write G as a disjoint union of classes AI, where where AI is representative of each
distinct classes. Okay, so pictorially ये क्या represent कर रहा है? So if we have a set G, यहाँ पे a group is a set, you are defining a relation, so it will break G into some disjoint classes. Suppose this is class of A1, this is class of A2, ऐसे करते 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 यहाँ पे G is a finite, so finite number of class रहेगा. So this is class of A. तो यहाँ पे हम जो AI लिख रहे थे, this AI actually comes from distinct class. यहाँ से A1 आ रहा है, यहाँ से A2 आ रहा है, यहाँ से A3 आ रहा है, ऐसे करते यहाँ से AN आ रहा है. ओके, सो ये AI A2 AN. ओके, दिस बिलोंग्स टू डिस्टिंक्ट क्लास. ऐसे नहीं ले रहा है कि यहाँ से A1 ले रहा है, यहीं से A2 ले रहा है. A2 कोई और क्लास से, नेक्स्ट क्लास से आ रहा है. ओके, सो A1 A2 दे आर बिलोंग्स टू डिस्टिंक्ट क्लास, मतलब एक क्लास से हम दो एलिमेंट नहीं ले रहे हैं इस वाला AI पे. ओके, so let's take i's from 1 to n. There are, since G is a finite group, so there will be some finite number of class. So let's check, there is n number of class. Okay, so यहाँ पे जो A1 A2 आ रहा है वो डिस्टिंक्ट क्लास से आ रहा है. ऐसा नहीं कि A1 इस क्लास से आ रहा है, A2 भी ये क्लास से आ रहा है, ऐसा नहीं. ओके, so A2 will belongs to the next class, another class. Okay, so erase कर देता हूँ. ओके फाइन. तो हम लोग क्या लिखे हैं? हम लोग G को लिखे हैं, दिस इज 1 to n class of AI, where AI belongs to, AI is a representative, belongs to distinct equivalence class. Okay, fine. तो एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, हम ये देखना चाहते हैं, when we want to see, we want to see when cardinality of class of element is 1. इसको हम एक रिमार्क बोल देते हैं. ओके, क्वेश्चन बोल देते हैं. So our question is, when the we want to see when the cardinality of a class is 1. ये कब होगा, ये हम देखना चाहते हैं. ओके, so let class of A का कार्डिनलिटी 1 है, तो क्लास ऑफ ए का कार्डिनलिटी ए 1 है, मतलब क्या है? क्लास ऑफ ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, ए, क्योंकि हर एक क्लास में वो ए का क्लास ले रहा हो, तो इसमें तो ए रहेगा ही. यहाँ पे बोल रहा है एक ही एलिमेंट रहेगा, सो दैट इज ओनली पॉसिबल दैट क्लास इज ए ओनली. ओके, क्लास में सिर्फ ए ही रहेगा. सो इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा था क्लास ऑफ ए इज एक्चुअली नथिंग बट जी ए, जी इनवर्स, और G belongs to G, right? So ये क्या imply कर रहा है? This implies that G A G inverse इस दोनों केस से 1 और 2 से imply हो रहा है from from 1 and 2 implies G A G inverse equal to A for all G belongs to G, right? So this implies GA equal to AG for all G belongs to G. So what this implies? This implies that A, so A सभी एलिमेंट के साथ commute कर रहा है. This is the commutative relation, right? So A is commutating all the elements of G. So this means A is belongs to the center of the group, right? तो this is if and only if condition. अगर A ZG में रहेगा तो ये वाला होल्ड करेगा, ये उल्टा इम्प्लीकेशन हमेशा होल्ड करेगा.
फिर ये वाला हो जाएगा, फिर इफ एंड ओनली क्लास क्लास विल बी वन, राइट? ये वाला हो जाएगा. सो व्हाट वी गेट दैट क्लास ऑफ ए का कार्डिनलिटी वन होगा इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू जेड जी. ओके. मतलब इसका उल्टा इम्प्लीकेशन, ये वाला प्रूफ का उल्टा इम्प्लीकेशन भी सही है. मतलब ए अगर जेड जी में रहेगा तो ऐसे करते 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 अल्टीमेटली तुम ये पहुंचोगे कार्डिनलिटी ऑफ द क्लास इज वन. ओके. सो क्लास ऑफ ए का कार्डिनलिटी इज वन इफ एंड ओनली ए बिलोंग्स टू जेड जी. सो अब हम क्या कर रहे हैं, वी हैव दिस थिंग्स दैट G is the disjoint union of this classes. तो जिन जिनका क्लास का कार्डिनलिटी वन है उसको हम पहले लिख रहे हैं. सो दैट इज अच्छा. ओके. सपोज तुम बोथ साइड कार्डिनलिटी ले रहे हो. ओके. लेट्स टेक कार्डिनलिटी बोथ साइड. सो इससे क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ जी सिंस दे आर डिसजॉइंट तो कार्डिनलिटी समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि ऑल क्लास ऑफ ए आर डिसजॉइंट. तो कार्डिनलिटी विल बी समेशन आई वांट टू एन क्लास ऑफ ए आई का कार्डिनलिटी. ओके. मतलब क्या है, जी का पूरा सेट इसमें ब्रेक हो रहा है, ये वाला सेट यूनियन दिस सेट यूनियन दिस सेट यूनियन दिस सेट यूनियन दिस सेट. सो अगर पूरा जी का कार्डिनलिटी इज एक्चुअली इक्वल टू इसका कार्डिनलिटी प्लस इसका कार्डिनलिटी प्लस इसका कार्डिनलिटी. तो कार्डिनलिटी एक्चुअली समेशन हो रहा है इस डिस्जॉइंट क्लास का, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये सारा डिस्जॉइंट क्लासेस है. सो यू कैन राइट cardinality of G is the summation of the cardinality of the classes, each classes. अब देखो, जो जिनके लिए क्लास का कार्डिनलिटी वन हो रहा है वो का जेड जी का कार्डिनलिटी है, क्योंकि इफ एंड ओनली ए बिलोंग्स टू जेड जी. तो यहाँ पे जेड जी का कार्डिनलिटी सामने ले लेते हैं, मतलब ऑल दोस क्लास जिसका कार्डिनलिटी वन है उसको सामने ले रहे हैं. तो बाकी क्या रहेगा यहाँ पे, क्लास ऑफ ए आई रहेगा वेयर क्लास ऑफ ए आई का कार्डिनलिटी इज ग्रेटर देन वन. तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, जिनका कार्डिनलिटी क्लास का कार्डिनलिटी वन है उसको सामने ले रहा है, और जिनका क्लास का कार्डिनलिटी एक से ज्यादा है उनको हम अलग से लिख रहे हैं. ओके. फाइन. यहाँ पे लिखना चाहिए कि वेयर ए आई बिलोंग्स टू डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास. ओके. फाइन. सो हमने क्या लिखा अभी तक, जी का कार्डिनलिटी इज एक्चुअली जेड जी का कार्डिनलिटी प्लस क्लास ऑफ ए आई का कार्डिनलिटी वेयर क्लास ऑफ ए आई का कार्डिनलिटी इज मोर देन वन. ओके. सो इसको हम करते हैं, कहते हैं दिस इज कार्डिनलिटी, इसको हम कहते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ जी. ओके. तो इसको कहीं से मतलब बेटर वे से लिखा जा सकता है. ओके. टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए आई sometimes we use the cardinality of AI is actually equal to the cardinality of G by NAI. So NAI क्या है, ये होता है नॉर्मलाइजर ऑफ अ एलिमेंट AI. ओके. सो इससे कभी कभी बार CI के कार्डिनलिटी निकलने से आसान होता है ये वाला कार्डिनलिटी निकालना, क्योंकि NI जो नीचे वाला पोर्शन है. ओके. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नॉर्मलाइजर ऑफ एआई. ये एक सब ग्रुप होता है जी का. इस जो क्वेश्चन ग्रुप हो रहा है इसका, ये जो क्वेश्चन है इसका कार्डिनलिटी निकालना कभी कभी बार आसान हो जाता है इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ एआई. तो इसको हम इस फॉर्म में ले जाएंगे. ओके. तो कैसे ले जाएंगे, कैसे इन दोनों का कार्डिनलिटी सेम होता है और नॉर्मलाइजर क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे. ओके. सो व्हाट इज नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट.
define define n of a to be all those g belongs to g such that ag equal to g है। मतलब वही सारा एलिमेंट होगा g का जो a के साथ कम्यूट कर रहा है। ओके, इसको हम सेंट्रलाइजर ऑफ ए भी बोल सकते हैं। पर यहाँ पे एक नोट है, अगर इसको नॉर्मलाइजर बोलेंगे तो सेंट्रलाइजर क्यों बोलेंगे? एक्चुअली सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर इसको सी ए से डिनोट करता है, ये दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सेंट्रलाइजर, सेंट्रलाइजर ऑफ ए। तो इसको नॉर्मलाइजर भी बोल रहे हैं, सेंट्रलाइजर भी बोल रहे हैं। इसका कारण क्या है? एक्चुअली एलिमेंट के केस में सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर इक्वल होता है, पर व्हेन यू टेक इंस्टेड ऑफ एलिमेंट इफ यू आर टेकिंग सब ग्रुप, so this is normalizer of H, and if you are taking centralizer of H they are not equal in case of subgroup. Okay, so but in case of element this centralizer and normalizer they are equal concept, तो इसको centralizer बोलो या फिर normalizer बोलो, कोई डिफरेंट नहीं है। सो हम लोग इसको normalizer बोलते हैं। सब ग्रुप के केस में ये डिफरेंट हो जाता है। ओके, सो इसको उस टाइम पे हम लोग अलग अलग से बोलेंगे, सेंट्रलाइजर को सेंट्रलाइजर, एन ए को और नॉर्मलाइजर को सी ए बोलेंगे। ओके फाइन, सो दिस इज एन ए। एन ए मीन्स द नॉर्मलाइजर, और ये चेक कर लेना एन ए ये होमवर्क जैसा मान लो, एन ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये जी का सब ग्रुप होता है। अब हम ये देखेंगे कि एन ए का कार्डिनलिटी इज सेम एज जी, सॉरी, अभी हम ये देखेंगे सी ए का कार्ड कार्ड क्लास ऑफ ये नॉर्मलाइज सेंट्रलाइजर नहीं, ये क्लास सी एल मतलब क्लास। ओके, क्लास ऑफ ए का कार्डिनलिटी इज सेम एज एन ए का कार्डिनलिटी। ये कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? देखो, तो कार्डिनलिटी सेम फाइनाइट के केस में दिखाने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो बाइजेक्शन दिखाना। तो हम लोग एक बाइजेक्शन लेंगे। ओके, सो विल टेक अ बाइजेक्शन फ्रॉम, लेट एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम, पहले मैपिंग डिफाइन करते हैं फिर हम लोग प्रूव करेंगे एफ द मैपिंग विल बी ए बाइजेक्शन जी बाई एन ए, जी बाई एन ए टू सी ऑफ ए, क्लास ऑफ ए। ओके, क्लास ऑफ ए। सो कई कभी बार मतलब मैपिंग डिफाइन करना बहुत इजी होता है, मतलब इमीडिएट जो मैपिंग दिमाग में आ रहा है वो उससे ट्राई करो, कभी कभी बार प्रूफ हो जाता है। ओके, इमीडिएट मतलब देख के जो लग रहा है हाँ इसका मैपिंग ऐसा तो होना चाहिए। तो देखो इन जनरल एक जी बाई एन ए का एलिमेंट कैसे दिखेगा, जी ऑफ एन ए समथिंग, तो इसको इसको कहाँ भेजना है, क्लास ऑफ ए में। तो क्लास ऑफ ए का एलिमेंट कैसे दिखता है, जी वन जी वन इनवर्स, तो इसको सेंड कर दो, कहाँ पे सेंड करोगे, जी ए जी इनवर्स पर। ये तो क्लास ऑफ ए का एलिमेंट है, कि कोई क्लास ऑफ एलिमेंट क्लास ऑफ ए का एलिमेंट ऐसे दिखता है। सो सेंड दिस टू दिस। ओके, सो नाउ विल प्रूव दैट दिस इज वेल डिफाइंड एज वेल एज वन वन। अगर वन वन दिखाएंगे तो वन टू प्रूफ हो जाएगा, इफ एफ इज वन वन, इफ एंड ओनली इफ एफ इज वन टू। क्यों? क्योंकि सिंस जी बाई एन ए का कार्डिनलिटी फाइनाइट है, तो फाइनाइट के केस में वन 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 टू सेम ही होता है, मतलब वन वन इफ एंड ओनली वन टू। ओके, डोमेन का कार्डिनलिटी फाइनाइट है इसलिए। सो इसको हम दिखाएंगे दिस मैपिंग इज बाइजेक्टिव, तो वन वन दिखाएंगे तो उससे हो जाएगा। सो लेट्स क्लेम, क्या है क्लेम, क्लेम ये है कि एफ इज वन वन। सो वन वन दिखाने के लिए क्या, लेट्स टेक एफ ऑफ जी वन इक्वल टू एफ ऑफ जी टू। जी वन जी टू नहीं, f of g1 na is equal to f of g2 na।
ये तो दो डोमेन का एलिमेंट है, G1Na एंड G2Na। तो हमें दिखाना है दिस G1Na इक्वल टू G2Na, राइट, ये हमें प्रूव करना है। दिस विल बी इक्वल टू दिस। सो एफ ऑफ G1Na इक्वल टू एफ ऑफ G2Na, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ G1Na कहाँ पे जा रहा है, G1A G1 इनवर्स, G2 कहाँ पे जा रहा है, G2A G2 इनवर्स, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं G2 इनवर्स G1A G1 इनवर्स G2 इक्वल टू A। ये वाला पोर्शन इनवर्स से मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा, ओके। मतलब यहाँ पे पहले G1 G2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड, बोथ मतलब लेफ्ट साइड पे G2 इनवर्स मल्टीप्लाई करो, फिर फिर जो होगा उस पे बाद राइट साइड पे G2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये वाला लाइन आ जाएगा, ओके। सो दिस इज दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, G1 इनवर्स G2 का इनवर्स A G1 इनवर्स G2 equal to A, okay। So this means G2 inverse G1 of A is equal to A G2 inverse G1। सो देखो, ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला एलिमेंट ए के साथ कम्यूट कर रहा है, राइट। सो दिस मीन्स G2 इनवर्स G1 इज बिलोंग्स टू एन, क्योंकि एन में वही होगा जो ए के साथ कम्यूट कर रहा है, बट यहाँ पे ये वाला एलिमेंट ए के साथ कम्यूट कर रहा है। सो दिस मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एन। अगर ये एलिमेंट एन में रहेगा, दिस मीन्स ये इनवर्स, ये तो कोशेट का मतलब हम जब डिफाइन करे थे कोशेट का, two cosets are equal if and only this this thing holds, right। So this is implies G2Na is equal to G1Na, right, क्योंकि ये दो कोशेट कब इक्वल होगा, if and only G2 inverse, if and only G2 inverse G1 is belongs to the subgroup Na, ओके। सो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, जब हम कोशेट डिफाइन किया था कोशेट के ऊपर, तो ये वाला दो इक्वल हो जाएगा, तो 1 1 हो गया, क्योंकि G1Na वी वांट टू प्रूव दैट G1Na इज इक्वल टू G2Na। सो ये तो प्रूफ हो गया। तो दिस इंप्लाइज G1Na इक्वल टू G2Na, that is F is 1 1, hence F is bijective। so class of A का cardinality is same as G by Na का cardinality। So rewrite the class equation again. We will rewrite the class equation again. Class equation का क्या था? G is equal, cardinality of G is equal to cardinality of the center plus C of AI such that class of AI का cardinality is more than 1। जहाँ पे AI belongs to distinct class वो लिख देना, वो वाला लाइन फिर से मैं लिख नहीं रहा हूँ। So this is equal to G by Na का cardinality। Let's I is varying 1 for 1 to K, okay। ये एज्यूम कर लो, क्योंकि पहले के तक रन कर रहा था, पर अभी क्या हुआ, कुछ एलिमेंट सेंटर में आ गए, इसमें आ गए, तो वो वाला एलिमेंट माइनस करके लेट्स टेक आई इज वेरिंग 1 to K सच दैट सी ऑफ ए आई का कार्डिनलिटी इज ग्रेटर देन 1। अब देखो क्लास इक्वेशन में यहाँ पे जो जो क्लास रहेगा जेड जी में उनका कार्डिनलिटी 1 होगा, राइट, क्योंकि जेड जी का एलिमेंट मतलब उसका कार्डिनलिटी 1 होगा। सो इस टाइप पे 1 + 1 + 1 ऐसा रहेगा पहला वाला पोर्शन पे, तो ये कितना तक 1 रहेगा, कार्डिनलिटी ऑफ जेड जी टाइम्स 1 रहेगा, ओके। और यहाँ पे कुछ अलग चीज आएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है नेक्स्ट क्लास इक्वेशन में, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, कार्डिनलिटी जी बाई एन आई कुछ नंबर होगा, तो देखना, सिंस कार्डिनलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ जी बाई एन आई टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एन आई, ये दोनों तो सेम होगा,
So this means G by ni का कार्डिनलिटी इट विल डिवाइड कार्डिनलिटी ऑफ G। यहाँ से ये वाला पोर्शन इंप्लाई कर रहा है। सो दिस मीन्स हर एक क्लास का जो कार्डिनलिटी होगा दैट विल इंप्लाई दैट विल डिवाइड द कार्डिनलिटी ऑफ द ग्रुप। तो ये वाला चीज याद में रखना, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज से हमें बहुत क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन बी। मैं वो क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। ओके, सो आई डिस्कस द क्वेश्चंस एज वेल। जो जो क्वेश्चन अभी नेट में आता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा बहुत आता है वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। फाइन। सो हर एक क्लास क्या करेगा, जी का कार्डिनली को डिवाइड करेगा। और ये पहला वाला पोर्शन सेंटर का होगा। सेंटर एक सब ग्रुप होता है, ये सब चीज याद रखना। ओके, सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन जो नॉर्मलाइजर थ्रू के डिफाइन किया हो, ठीक है। पहले ओनली फॉर क्लास, फिर क्लास को नॉर्मलाइजर से रिप्लेस करके ये वाला इक्वेशन आया। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, फाइन। तो कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये नेट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन ऑकर्स एज ए क्लास इक्वेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। तो 10 ऑर्डर के ग्रुप में क्या का क्लास इक्वेशन हो सकता है। पहले देखो, अगर जी एबिलियन होगा तो उसका उसका क्लास इक्वेशन क्या बनेगा। ये ऑप्शन ए में आ जाओ। अगर इफ जी इज एबिलियन, इफ जी इज एबिलियन, हम ये देख रहे हैं कि ये हो सकता है कि नहीं। तो होने के लिए अगर होगा तो एक एग्जांपल देना चाहिए। हाँ, इस केस में हो सकता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कौन कौन हो सकता है, ऑकर कर सकता है। ओके, सो इफ जी इज एबिलियन तो हर एक क्लास का कार्डिनलिटी कितना होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट जी जेड जी में रहेगा, राइट, सेंटर में रहेगा। सो क्लास ऑफ ए आई विल बी वन फॉर ऑल ए आई, वायर ए आई बिलोंग्स टू डिस्टिंक्ट क्लास वाला वो जो लिखा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास, वो लिख देना, ठीक है। तो इस केस में क्लासिफिकेशन क्या बनेगा, इस केस में सिर्फ ये जेड जी पोर्शन रहेगा, राइट। ये जेड जी वाला पोर्शन रहेगा, मतलब 1+1 जेड जी टाइम्स होगा। यहाँ पे जेड जी मतलब कितना है, जेड जी तो पूरा ग्रुप ही है। तो दिस मीन्स 1+1 अप टू 10। यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो 10 तक जाएगा। सो दिस कैन बी ऑकर्ड, राइट, इफ जी इज एविलियन। फिर फिर बी में आओ। अच्छा, बी में बाद में आते हैं, सी में आओ पहले। सी क्या होगा, फॉर ऑप्शन सी। बी में हम लोग आते हैं बाद में। तो सी क्या होगा, 10 इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे जेड जी क्या है, यहाँ पे जेड जी ये है 3, राइट। इस क्लास का कार्डिनलिटी, इन तीन क्लास का कार्डिनलिटी 1 है, मतलब ये तीन एलिमेंट जेड जी में रहेगा, राइट। तो ये तीन एलिमेंट जेड जी में रहेगा, मतलब दिस मीन्स जेड जी का कार्डिनलिटी 3 है। बट जेड जी इज ए सब ग्रुप, तो सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप का ऑर्डर का डिवाइड करता है, राइट। सो दिस विल डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। बट यहाँ पे जेड जी का ऑर्डर 3 आ रहा है, जी का ऑर्डर 10 दिया हुआ है। सो 10 3 डिवाइड्स 10, नो, राइट। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो सी नहीं हो सकता, इट इज फॉल्स। ओके, फिर डी में आ जाओ। 10 = 1 + 2 + 3 + 4। अब देखो, हम ये बोला था हर एक टर्म क्लासिफिकेशन का, हर एक क्लास का जो कार्डिनलिटी होगा जी का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखो, इस केस में क्या 3 10 को डिवाइड करता है या 4 10 को डिवाइड करते हैं? नहीं ना। सो दिस मीन्स दिस कांट ऑकर, दिस कैन नॉट ऑकर, राइट। सो अब रहेगा सिर्फ सी। सी को देखो, इसके लिए हम ये यूज करेंगे,
अच्छा, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसको हम हटा लेते हैं थोड़ा। तो सी के लिए देखो, सी वाला क्या है? सी वाला ये है कि, सॉरी, बी वाला, बी, बी में क्या है? 10 इज इक्वल टू, ये क्या हो सकता है किसी ग्रुप का क्लासिफिकेशन? 10 इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 + 2 + 2। अब देखो यहाँ पे सेंटर का कार्डिनलिटी 2 है जो 10 को डिवाइड करता है, ठीक है। बाकी बाकी सब क्लास का कार्डिनलिटी 2 है, वो भी 10 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है क्या, ये क्लासिफिकेशन होगा? नहीं भी हो सकता है, ये इफ एंड ओनली कंडीशन नहीं है, मतलब अगर डिवाइड करेगा तो क्लास इक्वेशन बनेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता। पर अगर क्लास इक्वेशन बनना है तो डिवाइड करना जरूरी है, ओके। दिस इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट फॉर बीइंग अ क्लास इक्वेशन। तो अब देखो 10 ऑर्डर का कितना ग्रुप होता है? एवरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज आइसोमॉर्फिक टू Z10 और D5। ओके, D5 हम लोग कल पढ़े थे। तो D5 का ऑर्डर 10 होता है, और इसका क्लासिफिकेशन, पहले Z10 का क्लासिफिकेशन क्या होता है? Z10 इज एबिलियन ग्रुप, तो इसका क्लासिफिकेशन 1 + 1 अप टू 10, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट सेम डर में आएगा, इसका क्लासिफिकेशन नहीं बनेगा। और D5 का अगर देखोगे, इसका क्लासिफिकेशन होगा 1 +, इसका क्लासिफिकेशन क्यों ऐसा है हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप का हम लोग अभी निकालेंगे क्लासिफिकेशन। D5 का क्लासिफिकेशन 1 + 5 + 2 होता है, ठीक है। तो ये तो कोई भी नहीं, मतलब ये दोनों, एवरी ग्रुप इज आइदर आइसोमॉर्फिक टू दिस और आइसोमॉर्फिक टू दिस। तो इन यही दो पॉसिबिलिटीज है कि कोई 10 ऑर्डर का ग्रुप का क्लासिफिकेशन हो, और यहाँ पे तो कुछ अलग दिया हुआ है। सो दिस कैन नॉट ऑकर, सो बी विल बी फॉल्स, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ ए ग्रुप। जो नहीं हो सकता है उसको टिक करना है यहाँ पे, ठीक है। कई कबार नेट में हम लोग विच इज द क्लास इक्वेशन ऐसे करके टिक देता है, पर यहाँ पे बोला है विच इज नॉट द क्लास इक्वेशन, जो क्लास इक्वेशन नहीं हो सकता है किसी ग्रुप का, वो निकालना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना नेट के लिए, इधर उधर हो जाता है कभी कभी, ओके। तो पहला ग्रुप दिया है 10 ऑर्डर का, जहाँ पे सेंटर का कार्डिनलिटी यहाँ पे फिर देखो 3 है, राइट। पर 3 डज नॉट डिवाइड 10। जेड जी का ऑर्डर, जेड जी तो सब ग्रुप होता है, सो दिस विल बी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जेड जी जो सब ग्रुप होता है उसका आइडेंटिटी 3 दिया हुआ है, बट 3 डज नॉट डिवाइड 10, ये नहीं होगा। फिर फिर आ जाओ 4 में। अब देखो ये वाला इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जेड जी का ऑर्डर 2 दिया हुआ है, तो 2 4 को डिवाइड करता है, और एक क्लास दिया है जिसका ऑर्डर, जिसका कार्डिनलिटी 2 है, तो वो भी डिवाइड करता है 2 को, राइट। बट यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि पहले केस में हमने ये डिड्यूस किया था कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज आइदर आइसोमॉर्फिक टू Z10 और D5। पर यहाँ पे देखने एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज एबिलियन, क्योंकि हर पी स्क्वायर ग्रुप का, पी स्क्वायर ग्रुप मतलब वो एबिलियन होता है, राइट। जहाँ पे पी प्राइम, कोई भी प्राइम स्क्वायर ग्रुप हमेशा एबिलियन होता है, तो ये तो एबिलियन हो जाएगा। मतलब 4 का क्लास इक्वेशन ऐसे बन जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि एबिलियन, राइट। एबिलियन ग्रुप में हर एक क्लास का कोऑर्डिनेट 1 होता है। तो ये वाला केस फिर नहीं आएगा कि 4 होगा ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर, तो एबिलियन बन जाएगा, तो ऐसे 2 क्लास का कोई, मतलब 2 ऑर्डर का कोई क्लास नहीं होगा, तो दिस इज फॉल्स। तो फिर सी में आ जाओ, सी में क्या है? 1 + 1 +, अब देखो यहाँ पे 3 डज नॉट डिवाइड 8, फिर नहीं होगा ये, सो दिस विल बी फॉल्स। और डी में आ जाओ, तो डी क्या होगा? सो बाकी 3 फॉल्स हो गया, मतलब डी तो आंसर होगा, ये तो कंफर्म है। ऐसे डिस्कस, मतलब बाकी ऑप्शन डिस्कट करके भी ये कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 6 इज 1 + 2 + 3, ये क्या होगा? यस, ये क्या होता है? ये एक्चुअली S3 का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है।
तो एवरी ग्रुप ऑफ व्हाट आर सिक्स आइदर आइसोमॉर्फिक टू, मतलब अप टू 10 या 12 तक तुम्हें याद रखना चाहिए कि मतलब एवरी ग्रुप ऑफ व्हाट आर 10 इज आइसोमॉर्फिक टू आइदर D5 और Z10, ऐसे आइसोमॉर्फिज्म क्लास अप टू 15 ऑर्डर तक याद रखना, तो एग्जाम में सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। तो एवरी ग्रुप ऑफ व्हाट इज आइदर आइसोमॉर्फिक टू Z6 और S3। तो Z6 तो एबेलियन ग्रुप है, उसके केस में कार्डिनल मतलब क्लासिफिकेशन 1+1+1+1 ऐसे बनेगा अप टू 6, ओके। पर अगर S3 होगा तो उसका क्लासिफिकेशन ये बनेगा, फाइन। तो ये ट्रू है, ये क्लासिफिकेशन बन सकता है। S3 का क्यों ऐसा है मैं प्रूफ करूंगा अभी नेक्स्ट में, ठीक है, मतलब हम लोग देखेंगे। फिर एक और है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास इक्वेशन फॉर अ फाइनाइट ग्रुप, जो हो सकता है क्लास इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे कैन नॉट दिया था, तो ये वाला तीन ऑप्शन है राइट होगा, राइट। जो क्लास इक्वेशन में भी गलती कर दिया, यहाँ पे आंसर होगा ये हो सकता है, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता वही आंसर होगा, तो ए बी सी विल बी आंसर। डी हो सकता है तो इट विल नॉट बी आंसर, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास इक्वेशन फॉर ए फाइनाइट ग्रुप। तो यहाँ पे पहले देख दो, हर एक टर्म का 39 को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 13 करता है, 1 भी करता है, सो दिस इज ओके, राइट। तो इट कैन बी, ये हो सकता है, ये क्यों होगा मैं प्रूव कराऊंगा, ओके। सो फॉर बी देखो, बी के लिए सेंटर का कार्डिनली 2 है, वो 14 को डिवाइड कर सकता है, हर एक टर्म भी 14 को डिवाइड करता है। पर 14 क्या होता है, 14 होता है, 14 को तुम लिख सकते हो, बी के लिए मैं बता रहा हूँ, 14 इज 2.7, राइट। So it's saying that order of ZG is 2, right। और हम लोगों को पता है कि G is abelian if and only G by ZG is cyclic। तो यहाँ पे दिया हुआ है ZG का ऑर्डर 2, मतलब ये। सो इस केस में G by ZG का ऑर्डर कितना आएगा बोलो, 14/2 मतलब 7। इसका ऑर्डर तो प्राइम है, मतलब दिस मीन्स प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक, दिस मीन्स G by ZG is cyclic, right। So G by ZG is cyclic means G is abelian। तो G abelian मतलब इसका क्लास इक्वेशन कैसा रहेगा, 1+1 करके रहेगा, राइट, अप टू 14। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 है, तो ये तो नहीं हो सकता, अगर सेंटर का कार्डिनलिटी 2 है तो ये नहीं होगा, बी विल बी फॉल्स, राइट। डिफरेंट टेक्निक से मतलब ये वाला एक तो जो टेक्निक बताया, इसी चीज से हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट दिया है 21 का डिकम्पोजिशन कैसे दिया है, 1+3, 1+3+3 7। ये क्या होता है, ये वाला ए से ही होगा, तो क्यों होगा ए से, मतलब ये हम प्रूव करेंगे। अभी लास्ट जो है डी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट में यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है एक ऑप्शन, 2 डज नॉट डिवाइड 5, तो दिस विल बी नॉट आंसर। एंड फॉर ए एंड सी इसका आंसर ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि एक रिजल्ट लिखा देता हूँ, ओके। रिजल्ट क्या है, इफ G be a group of order P dot Q, P Q order का ग्रुप है, such that P divide Q minus 1 and P is less than Q, then क्लास, ये सब चीज एक्चुअली सेमी रेगुलर, सॉरी सेमी रेगुलर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट या फिर कुछ ऑटोमॉर्फिज्म, ये वाला चीज से मतलब ये वाला प्रूफ होता है। ये प्रूफ में जब हायर चीज कराऊंगा, हायर टॉपिक अलजेब्रा का मतलब ग्रुप थ्योरी का, तब ये सब प्रूफ इमीडिएटली आ जाएगा, ठीक है।
अभी रिजल्ट के तौर में मैं लिखवा दे रहा हूँ, जैसे कि तुम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सको। So if G is a group of order PQ and P does not divide, P divide Q minus one, अगर P does not divide करता है तो साइक्लिक हो जाता है उस केस में। So if P divides Q minus one and P is less than Q, then the class equation of G is क्या होगा? G का ऑर्डर तो P डॉट Q है, तो P डॉट Q will be 1 plus Q times Q plus up to कितना टाइम्स Q आएगा? 5P टाइम्स। ओके, फिर आएगा P का टाइम्स P plus अप टू P कितना टाइम्स आएगा? Q minus 1 by Q टाइम्स। ओके, सो 5P मतलब Q minus 1 राइट, 5P minus P minus 1 5P। फाइन, तो ये इससे हो जाएगा। ये में क्या दिया हुआ है? ये में ऑर्डर कितना दिया है? 39 राइट। तो 39 मतलब कि 3 into 13 राइट। यहाँ पे देखो 3 divide 13 minus 1 विच इज 12 राइट, एंड 3 इज लेस देन 13। तो इस केस में क्या होगा? 39 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 plus 13। p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू 3 है, मतलब 5p 2 होगा। यहाँ पे 5 3 2 होगा, मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स रहेगा। फिर रहेगा p का टर्म्स, p क्या है? 3। 3 कितना टाइम्स रहेगा? q माइनस वन बाई पी टाइम्स। q क्या है? 13, मतलब 13 - 1/3 टाइम्स। ओके, मतलब 4 टाइम्स रहेगा। सो यही तो दिया था, 4 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, 4 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 13। फिर ये वाला सी के केस में भी यही से होगा कि 21 को लिख सकते हो 3.7, यहाँ पे 3 / 7 - 1, फिर यही केस अप्लाई करके क्लास इक्वेशन उसका ये बन जाएगा। ओके, तो ये वाला रिजल्ट याद रखना क्लास इक्वेशन निकालने के लिए। Okay, so now we find some particular class equation of particular types of group. So first take class equation of Q8 ग्रुप का क्लास इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। ओके, सो Q8 ग्रुप कैसा होता है? Q8 is actually group containing this element I plus minus I plus minus j. We all know about this Q8 group, right? So what is center of Q8? Q8 का center क्या होता है? It is plus minus 1, right? Now we find, so class equation, we need to find the class of each element belonging to the distinct classes. So let's take class of I. Class of I क्या होगा? G inverse such that G belongs to Q8। तो ये मल्टीप्लाई करके देखना, इसका क्लास आएगा प्लस माइनस आई। फिर क्लास ऑफ जे क्या आएगा? प्लस माइनस जे आएगा। क्लास ऑफ के क्या आएगा? प्लस प्लस माइनस के। सो दिस मीन्स, तो डिस्टिंक्ट क्लास में होगा तो Q8 एक्चुअली ZG यूनियन क्लास ऑफ I यूनियन, दिस इज डिसजॉइंट यूनियन राइट, डिसजॉइंट यूनियन क्लास ऑफ J यूनियन क्लास ऑफ K राइट। सारा एलिमेंट कवर हो रहा है इसमें। तो इसका कार्डिनलिटी 2 है, इसको 1 + 1 लिखेंगे क्योंकि सेंटर में है। इसका कार्डिनलिटी 2 है तो दिस इज 2, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। सो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ Q8। इसको और नॉर्मलाइजर से भी कर सकते हो। नॉर्मलाइजर क्या होता है? क्लास का कार्डिनलिटी क्लास ऑफ आई अगर निकाल रहे हो तो क्लास ऑफ आई का कार्डिनलिटी क्या होता है? हमने प्रूफ किया था, दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ दिस, राइट। अब देखो, नॉर्मलाइजर ऑफ आई क्या होता है? ऑल दोस एलिमेंट्स व्हिच कम्यूट्स विद आई। तो प्लस माइनस वन तो कम्यूट करेगा ही क्योंकि वो सेंटर में है, वो सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। और प्लस माइनस आई भी आई के साथ कम्यूट करता है। तो दिस मीन्स
कार्डिनलिटी ऑफ नॉर्मलाइजर इज 4। तो इस केस में क्लास का कार्डिनलिटी क्या होगा? जी का कार्डिनलिटी बाई एन आई का कार्डिनलिटी। जी का कार्डिनलिटी क्या है? 8 है, एन आई का कार्डिनलिटी 4 है, तो इसका कार्डिनलिटी 2 होगा। सो 2 विल occur इन द क्लास इक्वेशन एज दिस, राइट? तो इस तरीके से कार्डिनलिटी ऑफ जे भी 2 आएगा, क्लास इस क्लास का कार्डिनलिटी भी 2 आएगा और इस क्लास का कार्डिनलिटी भी 2 आएगा, राइट? तो इससे क्यूवेट का मतलब क्लास इक्वेशन ऐसे निकल जाएगा, मतलब क्लास ऑफ इसका कार्डिनलिटी 2 आ रहा है, इसका मतलब दिस मीन्स क्लास ऑफ आई में रहेगा प्लस माइनस आई, क्योंकि आई में तो आई रहेगा और आई रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट माइनस आई भी रहेगा। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूएट। क्यूएट का क्लासिफिकेशन कैसा हुआ? 8 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ओके, ओके, सो नाउ वी विल फाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डीए। सेकेंड वाला क्या है? हम हर एक टाइप का ग्रुप का मतलब जो इंपॉर्टेंट ग्रुप से उनका क्लासिफिकेशन निकालेंगे। सो Q8 का हो गया, कोई भी एबिलियन ग्रुप होता तो उसका भी होगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप अगर एबिलियन होगा तो एक बार लिख ही देता हूँ। क्लास इक्वेशन ऑफ अ एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। क्या होगा? क्योंकि उसका हर एक एलिमेंट, क्योंकि एबिलियन है तो हर एक एलिमेंट सेंटर में रहेगा, सेंटर में रहेगा तो उसका क्लास कोऑर्डिनेट 1 बनेगा। सो इट विल बी 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। ओके, सो दिस विल बी द क्लास इक्वेशन। ओके फाइन। सो हम लिखा लेंगे थर्ड, जो कि क्लास इक्वेशन ऑफ डीएन डाइहेड्रल ग्रुप का क्लास इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। सो डीएन क्या होता है? डीएन हम लोग पढ़ चुके, डीएन इज एक्चुअली जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स। डीएन इज जनरेटेड बाय टू एलिमेंट आर एंड इसको एस मान सकते हो, एफ मान सकते हो, कोई भी, जहाँ पे आर इज रिफ्लेक्शन और एस स्टैंड्स फॉर, आर इज रोटेशन और एस स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट सम एक्सिस, जहाँ पे आर टू द पावर एन आइडेंटिटी होता है, एस स्क्वायर इज आइडेंटिटी होता है, एंड एस आर इज एक्चुअली एस इनवर्स आर इनवर्स, राइट? इसको एक्सप्लिसिटली अगर लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट आर आर स्क्वायर आर क्यूब अप टू आर टू द पावर एन माइनस वन, एंड देन एस आएगा, एस आर आएगा अप टू एस आर टू द पावर एन माइनस वन। ये सारे एलिमेंट ऑर्डर 2 का होता है और ये सारे एलिमेंट ऑर्डर 2 का होता है, राइट? और ये वाला एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप होता है, एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अच्छा, इसका सेंटर कैसे होता है? हम लोग ये दिखे, मतलब लास्ट क्लास में ये देखे थे कि सेंटर ऑफ डीएन इज वन, आइडेंटिटी रहेगा, मतलब वन रहेगा, या फिर आइडेंटिटी मान लो, इसको ई मान लो। ओके, वन इज नॉट नेसेसरली आइडेंटिटी, तो इसको ई मान लो। ई इफ एन इज ऑड, ऑड होगा तो इस केस में सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी रहेगा। और ई एन आर टू द पावर एन बाई टू आएगा इफ एन इज इवन। इसको इस चीज से याद रख सकते हो कि इफ एन इज इवन तो एन विल बी डिवाइडेड बाय टू, राइट? तो आर टू दी पावर एन बाय टू कर दो, वो वाला जो एलिमेंट होगा वो सेंटर में रहेगा। तो क्लास इक्वेशन भी दो टाइप का होगा। तो क्लास इक्वेशन जब ऑड होगा, इफ एन इज ऑड, राइट, एन इज ऑड, तो उस केस में एन को तो टू डिवाइड नहीं करेगा, तो उस केस में वन आएगा। और ये जो साइक्लिक ग्रुप बन रहा है एन ऑर्डर का, इसके लिए एक एन आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है मैं प्रूव करूंगा बाद में। तो ये साइक्लिक ग्रुप के लिए एक एन आएगा, और बाकी जितना टू ऑर्डर के एलिमेंट है उसके लिए टू आएगा। तो यहाँ पे तो एन ग्रुप का ऑर्डर, डीएन का ऑर्डर कितना है? 2n। तो n प्लस वन कवर हो गया, बाकी कितना बचा? बाकी बचा टोटल 2n, उससे हम लोग कवर कर दिया माइनस एन माइनस वन। मतलब अभी बचा है कितना, कितना एलिमेंट बचा है? एन माइनस वन एलिमेंट बच गया। तो टू रहेगा, टू करता करता जाए, कितना तक जाएगा? अप टू एन माइनस वन बाई टू। तो टोटल टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। ओके, सो
दिस विल बी द क्लास इक्वेशन। और इफ एन इज इवन होगा, उस केस में क्या होगा, एन को टू तक डिवाइड करेगा, फिर हम इस एन को n/2 करके लिख देंगे, ठीक है। और फिर बाकी जो था वही रहेगा 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे सेंटर 2 रहेगा तो यहाँ पे n 1+1 रहेगा, ओके, क्लियरली लिख देता हूँ मैं। इस केस में तो सेंटर 1 था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वन, एक बार 1 आया था। पर यहाँ इवन होगा तो सेंटर तो उसका कार्डिनल तो 2 है, 1+1 आएगा, और फिर n डिवाइड कर रहा है, 2 n का डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला n यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, n/2 n, ये सिर्फ मैं याद कर रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो 2 था यहाँ पे कितना कवर, कितना एलिमेंट कवर हो गया अभी तक, n+2, राइट। तो अभी कितना बचा है, अभी बचा है 2n - n - 2, मतलब अभी बचा है n - 2 एलिमेंट, राइट। तो अभी 2 कितना तक होगा, फिर ये n - 2 एलिमेंट तक कवर करेगा, तो ये होगा n - 2/2 इतना एलिमेंट, राइट। सो ये होगा इस केस में क्लासिफिकेशन, तो इसको याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएन का क्लासिफिकेशन कैसे मतलब होता है, ये होगा डीएन का, ओके। फाइनली हम लोग अब क्लास इक्वेशन ऑफ एसएन निकालेंगे, जो कि जो मतलब कई कबार एग्जाम में निकालने देते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ दिस एलिमेंट इन एसएन, या फिर कॉन्जुगेसी क्लास कैसे दिखेगा, या फिर क्लास इक्वेशन ऑफ एस4 कैसा होगा। तो ये सब एलिमेंट, ये सब चीज करने के लिए हम लोगों को एक क्लास इक्वेशन ऑफ एसएन समझना होगा। सो लास्ट वाला है क्लास इक्वेशन ऑफ एसएन, एसएन का क्लास इक्वेशन कैसा दिखेगा, ओके। सो कुछ चीज हम लोग एज्यूम कर ले कि व्यूअर्स को ये पता है, क्योंकि ये हम लोग किए थे जब एशियन ग्रुप अलग से पढ़े थे हम लोग। सो एशियन क्या होता है, नो वी नो दैट two element in एशियन are conjugate if and only if they have same cyclic decomposition, ओके। सो दो एलिमेंट सेम होगा, मतलब कंजुगेट होगा इफ एंड ओनली दोनों का सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन हो। साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या है सबको पता है, क्योंकि एक एलिमेंट को हम ऐसे साइक्लिक, ऐसा पूरा R1 साइकिल, ऐसे R2 साइकिल, ऐसे डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। तो दो एलिमेंट कंजुगेट होगा, सपोज दिस इज अ साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ ए, अगर बी एक एलिमेंट है उसका भी ऐसा साइक्लिक डिकम्पोजिशन होगा, मतलब उसको भी तुम ऐसे डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करोगे, तो यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे Rn, यहाँ पे जो Rn था, तो ऐसा होगा, तो ये ए आर बी कंजुगेट बन जाएगा, जो विल बी कंजुगेट टू बी। सो यही बोल रहा है कि दो एलिमेंट कंजुगेट होगा इफ एंड ओनली दे हैव सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन। मतलब इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन, मतलब इसको डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करोगे, तो अगर R1 R2 Rn ऐसा लेंथ का साइकिल आ रहा है, अगर बी में भी वही आ रहा है, सो देन ए एंड बी विल बी कंजुगेट टू ईच अदर, ठीक है। कंजुगेट मतलब क्या है, बी का क्लास में ए आएगा या फिर ए का क्लास में बी आएगा, दे विल बी बिलोंग्स टू सेम क्लास, इफ ए आर बी इज कंजुगेट तो दे विल बिलोंग्स टू सेम क्लास, ओके, फाइन। सो सो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, सो नंबर ऑफ conjugacy class equal to number of partition partition of n, क्यों होगा,
तुम अगर एन में साइक्लिक डिकम्पोजिशन एसएन में साइक्लिक डिकम्पोजिशन दे रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, एन को तुम पार्टीशन में ब्रेक कर रहे हो। अगर किसी एलिमेंट का साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऐसा आया R1 R2 अप टू Rn, तो इसका मतलब एन को तुम ऐसे ब्रेक किए हो, R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। ओके, मतलब एन को तुम ऐसे ब्रेक किए हो। फिर जिन 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 लोग जिन जिन एलिमेंट का साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऐसा होगा, वो सारा एलिमेंट सेम क्लास में जाएगा। तो जितना टाइप का ऐसा पार्टीशन मिलेगा उतना टाइप का क्लास होगा, क्योंकि जिन जिन एलिमेंट का मतलब डिकम्पोजिशन ये पार्टीशन से आएगा, जिस पार्टीशन से आएगा उन सारे एलिमेंट एक ही क्लास में होगा, उनका क्लास सेम होगा। सो जितना डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन मिलेगा उतना डिफरेंट डिफरेंट क्लास मिलेगा। सो दिस मीन्स द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास इज एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन। मतलब हर एक पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये अगर एन का एक पार्टीशन है, इफ एन इज इक्वल टू if n is equal to r1 plus r2 plus rk, this is a partition of n। अगर ये n के एक पार्टीशन होगा तो ये पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जिसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऐसा होगा R1 R2 अप टू rk। तो ये वाला सब एलिमेंट एक ही क्लास में रहेगा। तो एक क्लास को, एक पार्टीशन एक क्लास को मतलब डिनोट करेगा। तो जितना पार्टीशंस होगा उतना क्लासेस होगा। So number of conjugacy class is actually equal to number of partition। ओके, क्योंकि हर एक पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स मिलेंगे, तो वो एलिमेंट सब एक ही क्लास में होगा। सो जितना पार्टीशन उतना क्लास। ओके, फाइन। ओके, अब क्वेश्चन ये है, सपोज n इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RK, सब बी अ पार्टीशन ऑफ n। तो a अगर n का पार्टीशन होगा, दिस इज ए पार्टीशन ऑफ एन, हम इनको पार्टीशन किया हूँ R1 प्लस R2 RK। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ क्लास ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे जिसका जो जिसका मतलब साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऐसा होगा, पहले R1 साइकिल आएगा। ये कम मतलब इधर उधर हो सकता है, मतलब पहले R1 होगा ऐसा मतलब नहीं, यहाँ पे R2 हो सकता है, यहाँ पे R1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो साइकिल्स लेंथ है वो सब इसमें आना चाहिए। ऐसे करके यहाँ पे शायद तुम लोग R1 यहाँ पे R के लिख दो, मतलब कोई भी पहले R के हो सकता है, पहले R2 हो सकता है, ऐसे करके जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वो एक ही क्लास को डिनोट करेगा। ओके, मतलब ये वाला चीज प्रेजेंस होना चाहिए, ये R1 R2 R के ये वाला टर्म्स वो साइकिल्स के लेंथ में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो ये जो एलिमेंट होगा इसके साथ जो कॉन्जुगेट होगा वो सब एलिमेंट एक ही क्लास में रहेगा। सो एक पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लास मिल रहा है, राइट। सो इस क्लास में कितना एलिमेंट होगा, दिस इज द क्वेश्चन। हमें पता है कि जितना पार्टीशन होगा उतना नंबर ऑफ क्लास मिलेगा। मतलब ये जो सी आई लिखे थे, जी यूनियन ऑफ सी आई, हम लोग क्या लिखे थे, जी यूनियन ऑफ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ दिस क्लास ऑफ ए आई, राइट। यहाँ पे जो आई वेरी करेगा वो नंबर ऑफ पार्टीशन तक वेरी करेगा एसएन के टाइम पे। ओके, एक बार क्लियरली लिखता हूँ, एसएन विल बी दिस डिसजॉइंट यूनियन ऑफ क्लास ऑफ ए आई। आई कहाँ से कितना क्लास मिलेगा, आई इज वन टू नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन, एन का जितना पार्टीशन होगा उतना क्लास रहेगा यहाँ पे। ओके, अब क्वेश्चन है एक क्लास का कार्डिनलिटी क्या होगा, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ईच क्लास। सो सपोज सी आई क्लास ऑफ ए आई, ठीक है, इसमें ए आई का एक साइक्लिक डिकम्पोजिशन है, लेट्स ए आई का साइक्लिक डिकम्पोजिशन है ये है R1 R2 RK। ओके,
सो इस क्लास में जितना भी एलिमेंट होगा उसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन में ये R1 R2 R k ऐसा साइकिल्स आएगा, इसका मतलब ये ठीक है। तो इस क्लास का क्या कार्डिनलिटी होगा, यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस क्लास। सो एक्चुअली आंसर है इसका, कार्डिनलिटी है अगर ए का साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऐसा होगा R1 R2 R k, दैट्स मीन n is actually R1 R2 up to Rk, and this R1 R2 Rk is a cyclic decomposition of this class AI. Okay, so then number of element in the class of AI equal to n factorial by n1 to the power R1, यहाँ पे R1 नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते n1 to the power n factorial by R1 to the power k1 R2 to the power k2 up to Rk to the power नोटेशन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मैं नोटेशन ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ आर एल तक कर देते हैं। ओके, सो सपोज दिस इज फ्रॉम R1 to आर एल ओके, यहाँ पे आर एल तक है मौजूद, तो दैट इज आर एल टू द पावर के इंटू के वन फैक्टोरियल के टू फैक्टोरियल अप टू के एल जो है उसका फैक्टोरियल। तो ये के आई क्या है, के आई इज के आई इक्वल टू number of time Ri cycle occur in the decomposition। सो ये इसका मतलब ये है कि ये जो डिकम्पोजिशन लिए हुए यहाँ पे हर एक आर आई डिस्टिंक्ट होगा ऐसा तो नहीं है। तो जो एक आर आई मतलब जितने टाइम्स इस डिकम्पोजिशन में होगा, इस डिकम्पोजिशन में आर आई जितने टाइम्स रिपीट करेगा वो होगा के आई। अगर R1 एक ही बार है तो K1 होगा 1, अगर R1 दो बार है तो K1 होगा 2। ओके, सो जितने बार एक यहाँ पे हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा ऐसा मैं बोला नहीं, ठीक है जी, इस आर आई इज डिस्टिंक्ट, तो जितने बार आर आई रिपीट करेगा इस डिकम्पोजिशन में वो होगा के आई, ठीक है। सो ये क्लास का कार्डिनलिटी होगा दिस। ओके फाइन, सो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ एस एन, मतलब इसको अगर मान लो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ एस एन, दिस इज मतलब एस एन का कार्डिनलिटी इज एक्चुअली summation I1 to number of partition of n to class of AI cardinality, where class of AI का cardinality is nothing but n factorial by R1 by K1 R2 by K2 up to RL by KL into K1 factorial up to KL factorial, where AI इस फॉर्म का हो, यहाँ पे R1 साइकिल R2 साइकिल या फिर RL साइकिल हो, मतलब ये R1 R2 आपस में चेंज भी हो सकती है, यहाँ पे ये आ सकता है, यहाँ पे ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, पर ये सब टर्म्स प्रेजेंट रहना चाहिए डिकम्पोजिशन में, तभी सेम क्लास को डिनोट करेगा।
फाइन। तो एक निकालते हैं, ठीक है। किसी को बहुत डाउट होगा सभी के मन में कि ये कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, डिफिकल्ट लग रहा है। तो ये वाला निकालते हैं S4 का, मान लो। तो S4 का n क्या है, n4 है। यहाँ पे n इक्वल टू 4। तो 4 का कितना पार्टीशन से बोलो। 4 का पार्टीशन से ये पार्टीशन होगा 1 + 1 + 1, ये एक पार्टीशन है। 4 का और क्या पार्टीशन हो सकता है, 3 + 1 एक पार्टीशन हो सकता है, 2 + 2 एक पार्टीशन हो सकता है, एक और पार्टीशन हो सकता है 1 + 1 + 2 हो सकता है, और एक 4 हो सकता है, राइट। इसके अलावा कोई होगा क्या, नहीं इसके अलावा नहीं होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइकिल मिलेगा वो कैसे 1 लेंथ का साइकिल होगा, राइट। ऐसे कुछ मतलब आइडेंटिटी होगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग होगा, राइट। इस फोर का आइडेंटिटी मतलब इस फोर का एलिमेंट कैसा होता है, बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम 1 to 4 राइट। 1 से 4 तक जितने एलिमेंट है उसका बाइजेक्टिव मैप। तो ये वाला आइडेंटिटी मैपिंग होगा। ये वाला ये वाला साइक्लिक डिकम्पोजिशन का एक एलिमेंट बताओ, 1 2 3 4 को फिक्स करे, 1 मतलब वो फिक्स्ड हो रहा है। ये वाला साइक्लिक डिकम्पोजिशन का एक एलिमेंट बताओ, 1 2 3 4 ले लो, ये वाला होगा। इसका ले लो 1 2 ले लो, इसका ले लो 1 2 3 4, एक ही एलिमेंट है। तो इसका जो क्लास बनेगा उसमें सब ऑल दोस एलिमेंट आएगा जिसका डिकम्पोजिशन इस टाइप का दिखा। इसमें इसका क्लास में वो एलिमेंट रहेगा जिसका डिकम्पोजिशन ऐसे 2 × 2 हो। इसका साइक्लिक इसका क्लास में जो सब एलिमेंट आएगा उसका मतलब डिकम्पोजिशन ऐसे 2 हो, मतलब 2 साइकिल्स हो। यहाँ पे 4 साइकिल का एलिमेंट सब इसके क्लास में आएगा, ठीक है। तो इसके क्लास में हर एक क्लास में कितना एलिमेंट होगा, पहले देखो जितना नंबर ऑफ पार्टीशन है उतना नंबर ऑफ क्लास मिल गए हम लोगों को। यहाँ पे 4 का 5 पार्टीशन है तो 5 क्लास मिल गए। तो एक एक क्लास का हम लोग एक एक रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, तो इस क्लास का कौन एलिमेंट रहेगा, सिर्फ आइडेंटिटी। 1 1 वेक कर रहा है मतलब हर एक एलिमेंट फिक्स्ड हो रहा है। सो ओनली आइडेंटिटी विल बी बिलोंग्स टू दिस क्लास। फिर 3 1 में ये वाला आएगा, ये 4 को मान लो फिक्स कर, अगर किसी ने ये ले लिया तब भी सेम ही आएगा। सपोज किसी ने 2 3 4 ले लिया तो उसका भी सेम ही आएगा। ये दो सेम क्लास में होगा क्योंकि इन दोनों का साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम है। या फिर तुम 1 4 2 ले लो, वो भी सेम आएगा उसका क्लास। तो कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव ले लो इस, कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव ले लो इस डिकम्पोजिशन के, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे सेम। तो अब देखो इस फॉर्मूला का यूज करो तो इस क्लास में कितना एलिमेंट रहेगा, आइडेंटिटी क्लास में एक ही एलिमेंट आ रहा है। इस क्लास में कितना एलिमेंट होगा, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा है, 3 and 1 राइट। तो ये फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल बाई कितना साइकिल है, 3 साइकिल एक है तो 3 to the power 1, 1 साइकिल कितना है, 1 है, तो दिस, so दिस विल बी 8, राइट। इसमें देखो 4 फैक्टोरियल बाई 2 साइकिल कितना है, 2 साइकिल 2 है, तो 2 to the power 2, और बाकी कोई साइकिल नहीं है यहाँ पे, इंटू 2 फैक्टोरियल, ऊपर का जो पावर वो फैक्टोरियल में आता है। फिर इसमें देखो तो ये क्या हो रहा है, दिस इज दिस विल बी 3 राइट। तो इसमें देखो 4 फैक्टोरियल बाई क्या होगा नीचे, 2 साइकिल एक ही है तो 2 to the power 1, एंड 1 साइकिल कितना है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 4 है, 1 साइकिल 2 है। सो ये लिखना भूल मत जाना। सो 1 to the power 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि 1 to the power 2 है, पावर का फैक्टोरियल में आ जाएगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 4 साइकिल एक ही है तो 4 to the power 1 होगा, फिर 1 फैक्टोरियल। तो ये आएगा, ये आएगा 6, एंड ये आएगा दिस विल बी, दिस विल बी ऑल्सो 6 आई गेस। तो टोटल कितना आ रहा है, 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 + 8, 15 + 8 23 एंड 1 24। तो S4 का ऑर्डर तो 24 ही होता है। तो 24 इक्वल टू 1 प्लस, ऐसे लिख सकते 1 प्लस, फिर 8 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 6, दैट इज S4 का कार्डिनलिटी 24, दिस इज 8 प्लस, so this is the class equation of S4, okay।
तो ऐसे किसी भी एलिमेंट एसएन के लिए एन का पार्टीशन निकालना, हर एक पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट लेना, उस एलिमेंट उस टाइप के एलिमेंट कितना है वो तो ये फॉर्मूला से बता दोगे, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से बता दोगे तो वो फॉर्मूला यूज करना, तो कितना एलिमेंट है वो क्लास में वो मिल जाएगा, फिर और सम टोटल सम कर देना, तो दैट विल बी एन फैक्टर विल बी इक्वल टू दिस प्लस। हर एक के केस में एसएन में सेंटर में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो ई का जो क्लास होगा आइडेंटिटी का वो उसमें एक ही एलिमेंट होगा। ओके, सो ऐसे हम लोग, तो ऐसे हम लोग एसएन मतलब क्लासिफिकेशन आसानी से निकल सकते हैं। तो हम लोग किस किस ग्रुप का निकाला है अभी तक, साइक्लिक मतलब क्लासिफिकेशन एसएन का, डीएन का, जेड एन ओ एबिलियन केस में हो जाएगा, क्यू एट का, ठीक है, और के फोर लोग है कि एलियंस फोर ग्रुप, वो तो एबिलियन है तो उसका मतलब वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन यही आएगा। तो हर एक एलिमेंट का अलग ऐसे स्पेशल ग्रुप का हम लोग क्लास इक्वेशन निकाल दिए। ओके, सो इतना ही था। नेक्स्ट क्लास कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। ओके, सो लेट मी स्टॉप।